कुदरत है ना, जो कुदरत के तौर पर नेचर जो हमारे लिए डैमेज क्रिएट करती है उसको हम नेचुरल डिजास्टर्स कहते हैं. क्लियर? टू अंडरस्टैंड दिस I will share one video. Just a minute. I will show you one video. These are the objectives given here. You will come to know what are the natural calamities, types of natural calamities, effects of calamities, and precautions also we will learn side by side. So here I am going to show. Ma'am, your voice is not audible. Ma'am, your voice is not audible. I'm keen to know what scientific university. Well, ma'am, your voice is not audible. Wait, Listen, beta. beta ji, please try to listen. Try to listen. How does the earthquake occur? It's a sudden change. See, Excuse me, Sonali ma'am. Excuse me, Sonali ma'am. Audible. damaged. People and animals may get injured and may even get killed. सोनाली मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही. Not audible. Ma'am, your screen is not visible. Beta, please listen, beta, listen. Please wait for a minute. Maybe some network problem from ma'am's side. Okay, wait. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैम, स्टूडेंट्स एक दूसरे को म्यूट ही बहुत कर रहे हैं. अब जब मैं उन्हें रिमूव करने जाती हूँ तब तक वो लेफ्ट कर देते हैं. Listen, बेटे. स्टूडेंट, आप ऐसे करोगे तो मैम कैसे आपको पढ़ाएंगे? हाउ मैम विल टीच? डोंट डू लाइक दिस. By the time, listen. Who is ज्योति? ज्योति के नाम से कौन? Bete, for math class, you must keep your math book, notebook, and pen. Okay, because today we are going to start a new chapter, chapter number 6, simplification of numerical expressions. My voice is audible, na bete? So
You got my point? Very good. Thumbs up दे दिया है, शाबाश. So today we are going to start a new chapter, chapter number 6, simplification of numerical expression. This is an interesting chapter. Clear बेटे? तो आपके पास आपकी मैथ्स की बुक होनी चाहिए. बुक का चैप्टर नंबर 6 आपने ओपन करना है. Clear? After the SS class, we will wait. Beta ji, please don't try to unmute. Mute yourself and listen the instructions. Clear, bete? Or bete, we have already done chapter number 5, decimal fractions. Clear? So decimal fraction already we have recapitulated. Multiplication of decimal fraction, तो you know because आपकी CT भी हो गई है कि in multiplication of decimal fraction, decimal move to the right side, and for division of decimal fraction, decimal move to the left side. ये तो सबको clear है ना? और one important rule, whenever the division of decimal fraction, तब आपने क्या करना है, चेक करना है. We have to do the sum on our notebook. First of all, please listen. Okay? So आपने क्या करना है बेटे, जब आपको डेसिमल फ्रैक्शन में डिवीजन करनी है तो डिविडेंड और डिवाइजर, उसमें से, ये मैं रिकैप्चुलेट कर रही हूँ चैप्टर को, ठीक है. तो आपने क्या करना है, जो डिवाइजर है डेसिमल फ्रैक्शन में, उसका जो डेसिमल पॉइंट है उसको आपने हटाना है और उसको किसमें चेंज करना है, सिंपल होल नंबर. सिंपल होल नंबर विदाउट एनी डेसिमल पॉइंट. क्लियर बेटे? तो उसके लिए क्या था कि 1 के साथ आपने काउंट करनी है नंबर ऑफ 0. कैसे लगनी थी कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स थे उतनी हमने क्या लगा ली है, 1 के साथ 0 लगा लेनी है. सपोज नंबर है 4.5, तो 1 के साथ कितनी 0 होंगी, ओनली 1. मीन्स टू से 10 से नीचे मल्टीप्लाई और 10 से ऊपर मल्टीप्लाई करके हमने इसको, जो इसका डिवाइजर था ना डेसिमल का, डिवाइजर डिवीजन का जो था, वो हमने क्या किया, उसको सिंपल होल नंबर में चेंज कर लिया था. क्लियर? एंड टुडे आई हैव सेंड वन मैसेज इन योर ग्रुप कि यू विल सेंड मी मैथ्स होमवर्क exercise 5.7 to 5.10 by 1 o'clock. So today you will share 5th blue. Excuse me, ma'am. Just a minute बेटे, let me finish. So with 5th blue class आप आज क्या करोगे, वर्क शेयर करोगे अपना मैथ्स का होमवर्क. और 5th रेड में से जिन बच्चों ने कल नहीं शेयर किया, दे विल ऑल्सो शेयर. ओके? Yes, Sonali ma'am. Excuse me, ma'am. Yes, बेटे, yes. मैम PDF बना के भी भेज सकते हैं. Yes, anyway, maybe आपकी क्लियर पिक्स हो उसकी नोटबुक्स की, और यू कैन मेक PDF. PDF is better option. Sonali ma'am, excuse me, Sonali ma'am. Will you want to continue SS lecture or I'll start? Yes. Ma'am, actually a problem, I'm not able to share my screen. If you can afterwards you can share. Yes ma'am. Pardon? If you can share my आरती शर्मा के नेम से जो भी बच्चा है. Sonali ma'am, I think maybe network problem from your side. So can I start math class? Please write in chat box. Ma'am, you please share yours. शेयर कर. मैम इज सेइंग कि मैम की शेयर कर दो स्क्रीन या अपनी शेयर कर दो. हाँ जी, बताइए मैम, किसकी, आपकी करूं या बताइए, आपके वाली करूं या मैं अपनी मैथ्स की करूं मैम? प्लीज राइट इन चैट बॉक्स. सोनाली मैम, योर वॉइस इज नॉट प्रॉपर्ली ऑडिबल. मैम मैसेज कर दो. सोनाली मैम मैसेज कर दो. कहते हैं
स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम पहले ही इतनी हो रही है कि वो टीचर्स की स्क्रीन में प्रॉब्लम आ रही है, और आप लोगों ने एक न्यू प्रॉब्लम स्टार्ट की है कि आप म्यूटेड टू एवरीवन, आप एक दूसरे को म्यूट कर रहे हो। बेटा, आप सबके लिए टीचर्स इतने एफर्ट्स कर रहे हैं आपको स्टडी कराने के लिए, और आप म्यूट कर रहे हो। व्हाट इज दिस? You have to cooperate with the teachers, all of you. Wait for some time if network problem is there. Yes, my screen is visible. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Neetu, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay. नाली मैम बोलिए। Listen students, today we will learn about disasters, natural disasters which are occurred due to the nature. For this, ma'am, excuse me, one video was there. Yes, ma'am. एक्चुअली मैम मैंने स्लाइड शो चलाया है, तो स्लाइड शो में आप प्लीज गाइड कर दो कि कहाँ पे इसके बाद है। इससे पहले और पहले मैम, उससे पहले तो ऑब्जेक्टिव्स ही आ रहे हैं मैम। इसी में मैम नीचे ना होगा, देन वहां से प्ले करनी है वीडियो। यस, जस्ट अ मिनट। यस, ma'am, audio problem is there, I think. In this video, beta, you will come to know about the earthquake. Earthquake is a natural calamity, and students want to ask about the earthquake from the teacher. Then teacher says, sudden changes inside the earth cause earthquake. जब बहुत चेंजेस आती हैं, वाइब्रेशन शुरू हो जाती है अर्थ के अंदर, सरफेस के अंदर, तब अर्थ में क्रैक्स आने शुरू हो जाते हैं, शेक करना शुरू हो जाती है, वाइब्रेशन शुरू हो जाती है, और उन वाइब्रेशंस को हम जब फील करते हैं तो जो बिल्डिंग्स भी बहुत वीक होती हैं उनमें क्रैक्स आ जाते हैं, रोड्स जो हैं वो टूट जाती हैं, और बहुत लॉस हो जाता है प्रॉपर्टी का भी और लाइफ का भी। तो इसको हम कहते हैं अर्थक्वेक। एंड कई बार तो डैम्स में भी क्रैक आ जाते हैं, और डैम्स के अंदर जो पानी होता है वो भी बाहर आ जाता है, और इस कारण से जो डैम्स में क्रैक आने पर फ्लड्स आ जाते हैं। अब नेचुरल कैलेमिटीज कौन कौन सी हैं? अर्थक्वेक्स, फ्लड्स, ड्राउट, साइक्लोन, lightning, landslide, tsunami. In this chapter, we will not learn about lightning and landslides. I will just give you introduction. Lightning होता है जब clouds आते हैं, light चमकती है, उसको lightning कहते हैं। आपने कई बार देखा होगा बादलों। बेटे mute yourself. Next comes floods. फ्लड्स होता है जब रेनफॉल बहुत ज्यादा आ जाती है, रिवर्स ओवरफ्लो कर जाते हैं, और वो पानी जो है दैट कम्स ऑन द रोड एंड इनसाइड द हाउसेस ऑफ द पीपल। लोगों को अपना घर छोड़ करके एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है, डेली वेजेस पे जो काम करते हैं वो अपने घर की तरफ वापस चले जाते हैं। फ्लड्स का पानी इवन रोड्स में आ जाता है, और कई बार तो
कार्स और जीप्स भी डूब जाती हैं और उसी के साथ फ्लोट करने लग जाती हैं. देन कम्स ड्राउट. ड्राउट मीन्स जब बहुत कम रेन हो या बिल्कुल ना के बराबर रेन हो तो जमीन जब है ड्राई हो जाती है, कितनी देर तक ड्राई रहती है, मॉइस्चर भी नहीं रहता है, तो फसलें वहां पे ग्रो नहीं कर पाती. सो एट दैट टाइम drought comes. Neetu ma'am, next slide. Now you are to write the answers. Neetu Virdi ma'am. आई थिंक मैम उन्होंने लेफ्ट कर दिया. आई थिंक सो. Network problem is there ma'am, that's why the problem is there. यस मैम, यस मैम. So okay, now students you are to write which screen will be visible. Meanwhile you should write what are natural disasters. Chat box में लिखो natural disasters क्या होते हैं. Write down in the chat box what are natural disasters. ये तो बेटे आप नेचुरल डिजास्टर के नेम लिख रहे हो ना. यस, मंजोत का ठीक है. अ सडन कैलेमिटी which occurs naturally. Yes, sudden calamity. Yes, good. Now all are copying. All are copying now. Yes. Okay, stop writing. Stop writing now. The next question. Listen to the question. Listen to the question first. Can you control natural disasters? Next question है, can you control natural disasters? Yes, answer is no. Very good. परीशा ने सबसे पहले आंसर दिया. Good. Naval, good. No, we cannot control natural disasters. अब कॉपी मत करो बेटे. It's okay. Now next question. Okay. Excuse me? Tell me. Yes, ma'am. Neetu ma'am, now share the screen, think and answer. Meanwhile, I am asking the questions. Okay. In which natural calamities there is water and water everywhere? Write answer in the chat box. In which natural calamity there is water? Very good. Floods is the answer. Very good. Next is, in which natural calamity we feel vibrations? We feel vibrations. Very good. Earthquake is the answer. We feel vibrations. And sometimes these vibrations are very high. And we can check these vibrations from a device called seismograph. Seismograph एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो कि अर्थक्वेक की पावर को, उसकी इंटेंसिटी को मेजर करता है और उसका स्केल होता है रिक्टर. जैसे आप लेंथ को मीटर्स में, वेट को किलोग्राम्स में मेजर करते हो, तो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को, अर्थक्वेक की पावर को हम रिक्टर स्केल पे मेजर करते हैं. क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टेल मी व्हाट इज सुनामी. कैन एनीवन टेल व्हाट इज सुनामी? अर्थक्वेक वाला ओवर हो गया बेटे. यस, बिग वेव्स. वेरी गुड. रशेष का आंसर करेक्ट है, एकदम से करेक्ट. वेरी ह्यूज वेव्स और बिग वेव्स आर कॉल्ड सुनामी. व्हाट हैपन्स जब सी के अंदर, सी के सरफेस पे अर्थक्वेक आ जाता है, ओशन फ्लोर जो होता है ना, सी का फ्लोर जो ओशन के अंदर जमीन का जो फ्लोर होता है, फ्लोर
पे जब अर्थक्वेक आता है और वो वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती हैं, और वो वाइब्रेशंस जो हैं वेव्स को ऊपर नीचे करती हैं, और जब वेव्स बहुत ऊंची आ जाती हैं, बहुत ह्यूज हो जाती हैं, ये भी पावर पे डिपेंड करता है कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कितनी थी। वो ह्यूज वेव जो है 100 फीट तक हाई चली जाती हैं, तो उस टाइम पे जो वेव्स ऊपर उठती हैं, और वो वेव्स जो हैं सी कोस्ट के जो एरियाज हैं, जो सी के साथ साथ लगने वाले एरियाज हैं, वहां पर पहुंच जाती हैं, और वहां पर जितने भी घर बने होते हैं, बिल्डिंग्स बनी होती हैं, उनको डैमेज करते हैं। और इसमें भी बहुत लॉस होता है, प्रॉपर्टी का भी एज वेल एज लाइफ का भी। सो सुनामीज आर ह्यूज वेव्स which occur due to the earthquake in the sea ocean. Very good. Tsunami are huge waves created by underwater earthquake deep near the ocean floor. Very good. So next, Gayatri ma'am, Neetu ma'am is there. Okay. Yes, ma'am, she is here. Okay. Ma'am, will you share think and answer screen? One student has doubt, but I will clear your doubt in the end. Students have to answer about the questions which I have framed here. Neetu ma'am is going to share it right now. Now students are just copying. अंशु मिश्रा, अब आप खुद को बेटे अनम्यूट क्यों करते जा रहे हो बार बार? आपको तो 2 बार तो मैंने म्यूट किया है. अगेन यू आर. Next slide, ma'am. So here are the few questions. स्लाइड शो चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही आप नोट करो. आंसर्स भी इसमें साथ ही हैं, बिकॉज स्लाइड शो मैंने प्रिपेयर किया था. जस्ट अ मिनट. नेक्स्ट, a sudden hazard or a calamity which causes great damage is called. Yes, ma'am, student has written disasters. Click on the next slide, ma'am. Next. Yes, stop writing. Name any 2 natural disasters. Now you are to write name 2 disasters. Very good. Earthquake, tsunami. Spelling tsunamis के check कर लेना बेटा. Floods, drought, cyclone. Very good. Very good. Okay, ma'am, next slide. Next. Yes. Sudden movements under the surface of the earth leads to. Sudden movements under the surface of the earth. रशेष का ठीक है. Earthquake. Yes, ma'am. Next slide. It's earthquake. Next slide. Again, ma'am. Question 4. Stop writing. It's answer for earthquake. Next, question 4. It is difficult to predict. Predict का मतलब होता है पहले ही जान लेना, क्योंकि कौन सी ऐसी नेचुरल डिजास्टर है जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं? उसका कोई सिम्टम नहीं होता, साइन नहीं होता. आंसर इज अर्थक्वेक. ओके, आंसर इज अर्थक्वेक. सुनामी का बेटे थोड़ा पता चल जाता है पहले. आंसर इज अर्थक्वेक. नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन इज dash is an instrument used to measure the intensity of an earthquake. Write down the answer. Dash is the instrument. Yes, Jaspal Bharaj, very good. Seismograph. Next slide, ma'am. Seismograph is the
answer. Next slide again. This is the last question. The force of earthquake is measured on the dash scale. Sixth answer though, yes, Richter scale. Simar Dhamija has given the answer. Very good, Simar. Its answer is Richter scale. So, ma'am, I think इतना ही आज करवा पाते हैं because it is already very late. So, escape करके you can share your screen, ma'am. Thank you very much. Samriddhi Bansal has written all the answers. Very good. रिक्टर की स्पेलिंग गलत है तनिष्या सोमिया. रोचर नहीं लिखना, RICHTER. रिच डाल के फिर टर्स. ओके, सो करेक्ट द स्पेलिंग्स ऑल्सो साइड बाय साइड. इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम यू शुड लर्न दैट. Baljit Singh, mute yourself, Baljit Singh. It's Just me. Okay, can I start? Yes, ma'am. Okay. So, very good morning, everyone. All are waiting for math class. Let's start. Anshu Mishra is presenting the screen, ma'am. Now it's yours. आ गई आपकी lunch. Yes, bete. So today we are doing a new chapter, chapter number 6, simplification of numerical expression. This is a very important and interesting chapter, and one of my favorite chapter also. Really very enjoyable. Whenever you learn ना, तो आपको इतना easy लगेगा और आप इतना enjoy करोगे इस chapter को करने में. Okay, write in chat box 4, 2, 9. What are these? And नीचे जो है प्लस माइनस ये क्या है? Write in chat box कि 4, 2, 9, 56, 25, 100. What are these? इनको क्या कहते हैं? Whole number, numbers. Very good. All of you try to write. Shabash. Very good. Only few student has given the answer. Only few. कोई बात नहीं बेटे. ओके, अवनी ने सेकंड वन का आंसर भी कर दिया है कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड किसको कहते हैं? राइट इन चैट बॉक्स. प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड. वेरी गुड, शाबाश. इट मीन आपको ये दोनों चीजें क्लियर हैं. जो 4, 2, 9, 56 है इनको कहते हैं नंबर्स, और प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड ये क्या होते हैं? आर 4 बेसिक ऑपरेशंस. आपने किए हैं ना चैप्टर नंबर 2 में बेसिक ऑपरेशंस. ये वही 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं. तो जो आज का हमारा चैप्टर है वो इसी से रिलेटेड है. वो इन दोनों की ही गेम है कि क्या होगा, कुछ नंबर्स गिवन होंगे और कुछ सिंबल्स गिवन होंगे. क्लियर? तो उनको मिला के एक क्वेश्चन बना दिया जाएगा. वो है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन. सिंप्लीफाई करना होगा आपने उसको. क्लियर? यस. तो सी, टीचर के बोर्ड पे आपको ये 4 नंबर विजिबल है कि 10 + 5 है, 10 - 5 है. मीन्स टू से इनका क्या पर्पज है कि जो 10 और 5 है ना, 2 नंबर्स ले लिए टीचर ने और उस पे क्या किया, उन्होंने ऑपरेशंस यूज कर दिए सिंगल क्वेश्चन पे सिंगल सिंबल को. लाइक फर्स्ट वाले में कर दिया 10 + 5 और सेकेंड वाले में 10 - 5, देन 10 × 5, देन 10 / 5.
तो इसका क्या मीनिंग है कि आपको टीचर क्या समझाना चाह रहा है? वो कह रहा है कि अगर आप इनकी कैलकुलेशन सॉल्व कर पाओगे, सिंपली राइट इन चैट बॉक्स की आर यू एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस सिंपली। वेरी गुड, ओनली विनायक हैज गिवन द आंसर, शाबाश, गुड। चलो ठीक है कि आप इनका आंसर कर पाओगे, यस, बहुत इजीली कर पाओगे जब आपको 2 नंबर्स गिवन है और साथ में एक सिंगल ऑपरेशन उसमें यूज किया गया। क्लियर? तो ये तो हो गया हमारा सिंपल क्वेश्चन। फिर क्या किया, सब बच्चे शाउट करने लगे क्लास में कि ये तो हम कर ही लेंगे सर, ये तो हमें आते हैं क्वेश्चन, आप तो हमें फर्स्ट क्लास के क्वेश्चन करवाने लग गए हो। ठीक है, तो टीचर भी कई बार फिर करते हैं ना कि चलो ठीक है, अब आपको हम थोड़ा सा इससे लेवल अप का क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, तो टीचर ने क्या किया, थोड़ा सा लेवल अप कर दिया और अब क्या कर दिया उन्होंने, एक ही क्वेश्चन में सर ने देखो कितने 4 के 4 जो सिंबल थे, 4 बेसिक ऑपरेशंस थे, वो एक ही क्वेश्चन में डाल दिए, कर दिए। ओके, नाउ इन राइट इन चैट बॉक्स कि आर यू एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। राइट इन चैट बॉक्स, आर यू एबल टू सॉल्व। कुछ यस कह रहे हैं, कुछ नो कह रहे हैं। यस वाले बच्चे ओके, चलो ठीक है, इट मीन्स कि कुछ बच्चे जो यस कह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग होएगा कि हम स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। अगर पहले प्लस है तो ऐसे ही सोचा होगा ना अपने माइंड में कि 10 + 5 है तो चलो पहले इनकी एडिशन कर देंगे, बाद में हम माइनस कर देंगे, देन डिवाइड। ठीक है, ऐसे ही सोचा होगा ना कि चलो इस तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। चलो देखते हैं कि आगे क्या कह रहे हैं टीचर हमारे। सर ने क्या किया, क्लास में 2 स्टूडेंट हैं जो कह रहे हैं कि हम तो ये क्वेश्चन ना बड़े ही इजीली सॉल्व कर देंगे। 2 स्टूडेंट के नेम है जिमी और जॉनी। ठीक है, ध्यान से सुनना कि 2 स्टूडेंट्स हैं जो कह रहे हैं कि मैम ये क्वेश्चन तो, या सर हम ये क्वेश्चन तो बड़े इजीली सॉल्व कर देंगे। सर ने कहा चलो ठीक है, फिर आप 2 बेसिक ऑपरेशन को यूज करके मुझे आंसर करो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट इन चैट बॉक्स आंसर ऑफ जिमी। जिमी इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा तो क्या आंसर आएगा अकॉर्डिंग टू जिमी, और जॉनी दोनों सॉल्व कर लो। फिर मैं बताती हूँ कौन से बच्चे ने जिमी की तरह सॉल्व किया, किस बच्चे ने जॉनी की तरह सॉल्व किया, बट विदाउट टेकिंग एनी हेल्प फ्रॉम योर एल्डर्स। अगर पेरेंट्स हैं या कोई ब्रदर सिस्टर साथ में है तो उनकी हेल्प नहीं लोगे, विदाउट हेल्प आप इसको सॉल्व करोगे। वेरी गुड, सब बच्चे ट्राई करो। 2 ऑप्शंस तो दिए हैं ना आपको, ठीक है, तो सब ट्राई करो, बहुत इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर। वेरी गुड, कैलकुलेशन अपनी आप रफ नोटबुक आपके पास होगी, उस पे करते जाओ। क्लियर? चलो, मोस्टली जो आंसर आ रहे हैं मेरे पास वो है 36 और 16। चेक कर लेते हैं कि आपके आंसर जिमी और जॉनी से मैच कर रहे हैं। करें स्टार्ट? ओके, तो जो बच्चों ने 36 आंसर किया वो जिमी के अकॉर्डिंग किया है। ठीक है, चलो अब जॉनी का आंसर भी देख लेते हैं। उनका आंसर है 16। क्लियर? तो 2 ही आंसर मेरे पास भी आए, और जो टीचर ने वहां पे इन 2 बच्चों को क्वेश्चन दिया सॉल्व करने के लिए, उनके आंसर भी 36 और 16 ही आए। अब है बच्चे शाउट करने लगे कि सर प्लीज हमें बताएं कि किसका आंसर राइट है, जिमी का, जॉनी का। जैसे अब आपको भी मन में हो रहा होगा कि हमने किसी ने 36 लिखा है तो किसी ने 16, तो दोनों में से किसका आंसर राइट है। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, सर क्वेश्चन चेक कर लिया, सर ने आंसर कर दिया कि जिमी का आंसर रॉन्ग है और जॉनी का आंसर करेक्ट है। अब आप भी मन ही मन खुश होगे ना कि जिन बच्चों ने आंसर 16 लिखा था कि देखो भाई हमारा आंसर तो करेक्ट है। गीतू चोपड़ा जी जो आप लिख रहे हो ना वाई, तो वो स्टेप बाय स्टेप आई विल एक्सप्लेन। पहले जो समझा रही हूँ इसको एंजॉय करके करो, ठीक है बेटे? एंजॉय करो साथ में। कि अब पता चला कि जिमी का आंसर रॉन्ग है और जॉनी का आंसर करेक्ट है। ऑब्वियस है, जिसका आंसर राइट होएगा वो तो बच्चा खुश होएगा ही ना।
पर टीचर ने तो सबको समझाना है, ये थोड़े ना कि जिसका राइट हो गया उसी को अप्रिशिएट करना है, नहीं नहीं, नो, आपने डिसअपॉइंटेड नहीं होना। तो अब क्या होएगा, अब इसको करेक्ट वे से टीचर समझाएंगे कि राइट वे क्या है, जॉनी ने ऐसा क्या किया कि उसका आंसर जो है वो राइट हो गया। क्लियर? चलो, ओके। सर कहते कि उसको आपको एक्सप्लेन करने से पहले क्वेश्चन को आपको एक चीज और दिखाते हैं इसमें, कि एक 4 पिक्चर्स आपको गिवन होंगी, वो भी आप क्वेश्चन माइंड में रखना, वो इसी से रिलेटेड है कि अरेंज इन प्रॉपर सीक्वेंस। ठीक है, ये 4 पिक्चर्स टीचर ने बच्चों को दिखाई। लिसन, समवन इज अनम्यूटिंग आई थिंक। सो अब जो मैं पिक्चर शो करने जा रही हूं, ये है एक स्टूडेंट की। किसने आंसर रॉन्ग किया था, प्लीज राइट इन चैट बॉक्स। मुझे भूल गया कि किसने आंसर रॉन्ग किया था, जिमी ने या जॉनी ने? जिमी ने, वेरी गुड। आप ना सिर्फ ये सुनो कि मैम बीच में से क्या क्वेश्चन निकाल रहे हैं आपके लिए, ठीक है? तो ये है जिमी। क्लियर? तो जिमी का ये टाइम्स है कि वो स्कूल से आके उसकी इवनिंग टाइम तक की 4 पिक्स में आपको बता रही हूँ। ठीक है, जिमी स्कूल से आया, उसने क्या किया, नंबर 1 पे आके पहले अपना लंच किया, फिर उसने फुटबॉल खेला, फिर क्या किया, जिमी लेट गया, सो गया। ठीक है, फिर एंड में जिमी ने क्या किया, जब रात हो गई तब वो बैठ गया अपना होमवर्क करने। क्लियर? अब आपका क्वेश्चन ये है कि राइट इन चैट बॉक्स कि आप इन 4 पिक्चर्स की सीक्वेंस को अरेंज करो। जिस बच्चे को तो यही सीक्वेंस करेक्ट लग रही है वो चैट बॉक्स में लिखो 1 2 3 4, और जिसको ये चैट बॉक्स में ये सीक्वेंस रॉन्ग लग रही है ना कहीं वो आंसर दो चैट बॉक्स में। वेरी गुड, आंसर आ रहे हैं मेरे पास 1 4 2 3। शाबाश, सबने कॉपी नहीं करना, सब अपने अपने अकॉर्डिंग आंसर करोगे। कुछ की सबकी से डिफरेंट होती है ना, कि हमने नहीं हमने जाके ये नहीं ये करना है। ओके, सब ट्राई करो, सबके हम व्यूज देखते हैं कि आप घर जाके कैसे कैसे किस ऑर्डर में क्या चीज को करते हो, क्या एक्टिविटी पहले करते हो। मोस्टली जो आंसर है 1 4 2 3 आ रहा है। ये जो एक चीज और, ये जो थर्ड वाली पिक्चर है ये नाइट की नहीं है, ये जब हम दोपहर की पिक्चर है कि कुछ स्कूल से जाके भी बच्चे लेट जाते हैं ना, कि वी आर टायर्ड नाउ आई वांट टू टेक रेस्ट, ये वो वाली पिक्चर है, रात की पिक्चर नहीं है। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग आंसर करना जरा। वेरी गुड वेरी गुड, चलो ठीक है। अब आपके व्यूज और मेरे व्यूज देख लेते हैं। 1 3 4 2, शाबाश, बहुत बच्चों के आंसर यही वाले आए हैं। गुड। क्या किया कि सबसे पहले जाके खाना खाया, फिर थोड़ी देर रेस्ट भी करना चाहिए, सुबह से स्कूल में भी हम लोग पढ़ के आए हैं, खाना खा के रेस्ट तो करो। एकदम से अगर आप 4 ऑप्शन चूज कर लोगे कि हम फटाफट से होमवर्क कंप्लीट कर लें, तो उस टाइम तो वैसे ही आपका माइंड बहुत टायर्ड होएगा, एग्जॉस्ट हुआ होगा ना। तो थोड़ी देर रेस्ट भी किया, फिर अपना होमवर्क करके फिर एंड में आपने खेलना है। यही है ना प्रॉपर सीक्वेंस। सो अब ये पिक्चर मैंने आपको क्यों दिखाई कि जिमी के नेम से, क्योंकि जो जिमी है उसने आंसर रॉन्ग किया था। क्यों? क्योंकि उसकी सीक्वेंस रॉन्ग थी ना, तो उसको ये नहीं पता कि जाके सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, उसके बाद क्या एक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, तो जो हमारा ये चैप्टर है ना, सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, ये यही चीज है कि जो तो प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो करेंगे उनके आंसर आएंगे करेक्ट, अदरवाइज हो जाएंगे रॉन्ग। ठीक है, तो अब टीचर ने समझाया नेक्स्ट स्लाइड पे कि अब आपको मैं रीजन दे रहा हूं, जो आप भी मुझसे पूछ रहे थे ना मैम वाई कि ये क्या है, कैसे हो गया, तो ये है उसका रीजन। क्या किया? डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन लास्ट में। तो फिर टीचर ने समझाया कि जॉनी ने कैसे आंसर करेक्ट किया, कि हमें ये सीक्वेंस फॉलो करनी है और सिंप्लीफाई 1 स्टेप एट अ टाइम। क्लियर? क्या करना है? डी मास का फॉर्मूला लगाना है, डी मास।
D stands for division, M stands for multiplication, A stands for addition and S stands for subtraction. Clear? तो क्या करना है, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन हो, लाइक आज वीडियो में था, मे बी आपने वीडियो देखी हो बॉडमास की, तो उसमें जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 6.1, उसमें ओनली 4 ऑपरेशंस दिए हैं। कुछ बच्चे कह रहे थे मैम बॉड मास है, तो बॉड मास हम करेंगे लेकिन वो बाद में, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम। तो इसके अकॉर्डिंग अभी सिर्फ हमारे पास इस एक्सरसाइज में ओनली ये 4 बेसिक ऑपरेशंस हैं, आपको ये अप्लाई करने हैं और सिंप्लीफाई 1 स्टेप एट अ टाइम। क्लियर हो गई ये चीज? अब आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए जब आप करो। चलो लेट्स स्टार्ट टू नोट डाउन क्वेश्चन। आपके पास आ गया एक क्वेश्चन। यस, क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। स्टार्ट कर दो बेटे, नोटबुक पे करना है इसको साथ के साथ। All of you start to note down. Start to solve in notebook, maybe on rough, maybe on math notebook. Hardly matter. आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब जो हमारी ये पूरी स्टोरी है ना, वो इसी पे ही है कि किस किस बच्चे को। Someone is unmuting. Please write in chat box if you have any doubt. I'm not asking any answer. आई एम नॉट आस्किंग एनी आंसर कि मुझे आप लास्ट वाला आंसर निकाल के दे दो। मैं अभी किसी का कोई लास्ट आंसर नहीं चेक कर रही, सिर्फ आप पहले क्वेश्चन को समझोगे। डोंट बी हरी। इसमें पता है इस चैप्टर में क्या होएगा? देखने को सम बहुत इजी लगेगा और सबसे ज्यादा मिस्टेक्स इसी चैप्टर में होंगी। इंटरेस्टिंग तो है, बट अगर आप स्टेप नहीं ना फॉलो करोगे तो मिस्टेक्स बहुत होंगी आपकी। Please write in chat box. I'm not able to hear your voice. Otherwise, आपकी क्वेरी यही होएगी कि can I note down? This is for revision. Yes, revision क्यों बेटा? ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, तो नोट डाउन कर लो। और बेटा जो आप आंसर कर रहे हो, आंसर अभी मैंने किसी से कुछ नहीं पूछा। ओके? Excuse me, ma'am. Yes. आई थिंक अभी मिश्रा इज आस्किंग। अभी मिश्रा बेटा जी, मैं यही कह रही हूँ कि आप इसको बस क्वेश्चन को नोट डाउन करो नोटबुक पे, फिर मैं 1 बाय 1 आपको सारे स्टेप समझा रही हूँ। अभी मुझे आंसर चाहिए ही नहीं कोई भी। आप जो आंसर दे रहे हो 58, 44, मैम डन। मैं तो जिम्मी के अकॉर्डिंग चलूंगी कि जिम्मी की स्पीड कैसी है। जॉनी मत बनो, फर्स्ट क्वेश्चन है तो स्लो करेंगे। ओके हाँ जी, जसमीत की आवाज लग रही है ये मुझे। मैम जो आपने मैथ्स लिखे मैम साइड पे, मैम हमने जैसे पहले डिवीजन करनी है, फिर मल्टीप्लिकेशन, ये हमें ऑर्डर में वर्ड्स लिखने हैं। ये तो अभी मैं समझा रही थी, आप सुन ही नहीं रहे हो। आप तो पहले ही मुझे एक्सक्यूज मी मैम करी जा रहे हो। मुझे क्वेश्चन समझाने तो दो बेटा जी, गिव मी सम टाइम। ओके, स्टेप बाय स्टेप सब समझा रही हूँ मैं। करना आपने सबसे पहले स्टेटमेंट नोट डाउन कर लेनी है, और इन क्वेश्चंस में रफ वर्क बहुत यूज होएगा, तो आपने सबने प्रॉपर रफ वर्क की लाइन ड्रॉ कर लेनी है साइड पे। ओके, और डी मास ये इसका एक फॉर्मूला है, क्यों ये आप हर क्वेश्चन पे लिख लेना। डी मास, डी का मीनिंग डिवीजन, देन फॉलो मल्टीप्लीकेशन, देन एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। इसको लिखने से साइड पे आपके माइंड में रहेगा कि अच्छा मैंने ये स्टेप कर लिया। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, अब देखो राइट इन चैट बॉक्स कि सबसे पहले हमने फॉलो करनी है डिवीजन। मुझे आंसर विनायक 58 नहीं चाहिए बेटा, प्लीज स्टेप बाय स्टेप मुझे आंसर करो। वेरी गुड परीक्षा, वेरी गुड। इस फर्स्ट स्टेप में 6 को 6 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 1। और बेटे जब आप इसको नोटबुक पे भी सॉल्व करोगे तो आप क्या करोगे, इसको अंडरलाइन कर लोगे। अंडरलाइन इसलिए करोगे सो दैट
आपका एक स्टेप हो गया ना, आपको पता रहेगा। अगर आप अंडरलाइन नहीं करोगे तो आपको सम टाइम होता है कि हम वही डिजिट को दोबारा ले लेते हैं। क्लियर? चलो स्टेप 2 आ गया अब हमारे पास 75, अदर नंबर विल रिमेन सेम एंड साइन ऑल्सो। क्लियर? अदर नंबर एंड साइन विल रिमेन सेम। 75 का 75, माइनस का माइनस, 15 का 15 और प्लस का प्लस। आपने ना इसमें बहुत पेशेंस से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और एक टाइम पे एक ही स्टेप करना है। कोई भी इसको डबल स्टेप मत करने की ट्राई करना, मिस्टेक हो जाएगी। ओके? 6 को 6 से डिवाइड किया तो आ गया हमारे पास 1। मल्टीप्लाई का हो गया मल्टीप्लाई, 2 का 2। डी के बाद किसको फॉलो करना है? मल्टीप्लीकेशन। तो 1 और 2 के बीच में है मल्टीप्लाई का साइन। So write in chat box 1 2s are very good. Already given answer. Very good. Okay. चलो ठीक है। 75 का 75 आ गया, माइनस का माइनस आ गया, 15 का 15, प्लस का प्लस आ गया नीचे, और 1 और 2 की जो मल्टीप्लाई की है वो आ गई 2। ये है हरजास पॉल के नेम से। I don't know the name of student, I forgot. Okay, देखते हैं बेटे, कोई बात नहीं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो अब क्या करना है, इसके बाद 75 के आगे कोई साइन नहीं है। राइट इन चैट बॉक्स कि जो 75 है उसके आगे कोई भी साइन नहीं है, तो वो कौन सा साइन है उसके आगे? राइट इन चैट बॉक्स। शाबाश, वेरी गुड। अभी तक 2 स्टूडेंट ने आंसर किया है। गुड, शाबाश, वेरी गुड। जसमीत कौर जी, माइनस नहीं है बेटा जी। जब भी आपको कोई नंबर गिवन है और उसके आगे बिल्कुल बिगनिंग वाला जो नंबर होगा उसके आगे अगर कोई साइन नहीं है, इट मीन वो है प्लस का साइन। क्लियर? तो क्या करना है, 75 जो प्लस है और 2 भी प्लस वाला नंबर है, तो मल्टीप्लाई के बाद क्या करनी है हमने? एडिशन। तो 75 और 2 वाला जो है, इन दोनों को एक साथ कर लो, माइनस को साइड पे कर दो। करते हैं ना हम, कई बार क्लास में भी होता है कि जो अच्छे बच्चे हैं वो हमेशा साथ में बैठना चाहते हैं, और जो नॉटी होते हैं ना उनके साथ कोई नहीं बैठना चाहता कि ये तो डिस्टर्ब करेगा। तो नेगेटिव का साइन भी वही है कि दोनों जो प्लस वाले थे वो बच्चे एक साथ इकट्ठे हो गए और 15 को उन्होंने सेपरेट कर दिया। ठीक है? तो 75 और 2 दोनों प्लस वाले साइन को प्लस किया तो नंबर आ गया 77। ओके, अब है 7। लास्ट में हमने करनी है सब्ट्रैक्शन। लास्ट में करनी है सब्ट्रैक्शन। तो 77 में से 15 माइनस करो, अब आएगा आपका एक्चुअल में आंसर। गुड, आंसर क्या आ गया? 62। अब है कि कुछ बच्चों ने क्या किया, चैट बॉक्स में 58 आंसर किया था। अब आपको पता चला कि आपने इसके लिए जल्दी नहीं करनी बेटे, बहुत ही आराम से एक टाइम पे एक ही स्टेप को सॉल्व करना है और एक ही साइन को यूज करना है। सिंबल भी कौन से? डी मास के अकॉर्डिंग, डी मास के अकॉर्डिंग। ठीक है बेटे? और वन थिंग मोर, लिसन, वन थिंग मोर। सपोज इस क्वेश्चन में तो आपको 4 सिंबल्स गिवन है, माइनस भी है, प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको क्वेश्चन में कोई 2 सिंबल या कोई 3 सिंबल गिवन हो, तब भी आप सेम ही सीक्वेंस फॉलो करोगे। सपोज करो आपको डिवाइड का सिंबल नहीं गिवन, माइनस, प्लस और मल्टीप्लाई का सिंबल गिवन है, तब आप क्या करोगे? एम, ए और एस। सपोज करो एडिशन नहीं दी हुई, बाकी तीनों साइन है, तो क्या करोगे? पहले डी फिर एम। एडिशन नहीं है तो फिर छोड़ के एडिशन को सब्ट्रैक्शन करोगे। क्लियर? हाँ जी, अब बताओ, सबको ये चैप्टर इंटरेस्टिंग लगा है ना? इंटरेस्टिंग? यस मैम, इजी। मैम वेरी इंटरेस्टिंग। गायत्री मैम,
Are you able to hear my voice, Gayatri ma'am? Yes. बेटे all of you mute yourself. Wait करो. Mute करो हितेश, गायत्री मैम और सोनाली मैम. यस बेटे, तो इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपने हर एक स्टेप को सिंगल सिंगल ही, हाँ जी, सॉल्व करना है. यस, मैम हमको क्वेश्चन में लिखना है मैम. यस, डी मास का फॉर्मूला सबने लिखना है. वो आपको इसलिए क्योंकि आपको साइड पे जब नोट डाउन किया होगा तो आपको जब आप क्वेश्चन करोगे इट विल बी इजी फॉर यू. क्लियर? आपके लिए इजी रहेगा. आई थिंक सबने बहुत इंजॉय किया और सबको लगा होगा कि ये चैप्टर हम अच्छे से कर लेंगे, है ना? गुड. हाँ जी, यस बेटे. मैम जो मैं इसका पिछला क्वेश्चन था मैम, उसमें मैम आपने 77 को 2 से प्लस किया था, तो मैम अगर 15 को 2 से प्लस करेंगे तो वो रॉन्ग है. क्यों? क्योंकि 15 के आगे कौन सा साइन है? माइनस का. माइनस. तो हमने किसको करना है? प्लस वाले नंबर को पहले प्लस करना है, माइनस को बाद में करना है. ओके, गॉट माय पॉइंट? यस, गायत्री मैम. मैम ये रेसिप्रोकल जैसे करना है. रेसिप्रोकल क्यों किया हमने? रेसिप्रोकल तो कुछ भी नहीं किया इसमें हमने. रेसिप्रोकल थोड़े है इसमें, ये तो सिंपल थे 4 ऑपरेशंस. और यस, वन थिंग मोर बेटे, जो आपको होमवर्क में क्वेश्चंस है ना, उसमें मैंने एक क्वेश्चन आपको फ्रैक्शन वाला भी एक्सप्लेन किया. ठीक है, आपने वीडियो को बार बार देखना है और अच्छे से समझना है कि फ्रैक्शन में भी प्लीज नोट, उसमें फ्रैक्शन में भी आपने क्या करना है बेटे, सेम ही क्वेश्चन है, बस आपने वहां फ्रैक्शनल नंबर की तरह कैलकुलेशन करनी है कि पहले 2 फ्रैक्शनल की डिवीजन, फिर 2 फ्रैक्शनल नंबर की मल्टीप्लाई, देन 2 फ्रैक्शनल नंबर की एडिशन एंड 2 फ्रैक्शनल नंबर की सब्ट्रैक्शन. क्लियर? मैम यस. Excuse. हाँ जी, हाँ जी. Ma'am, Gayatri ma'am is not able to join the meeting and recording is going on. Yes, Either ma'am. join her or make her host. Actually, I have also reached the school. बट मैम यहाँ पे अब मुझे ऑप्शन, लेट मी चेक कि कोई है ऐसी ऑप्शन. आई थिंक ऑप्शन नहीं है मैम कोई भी, तो मैं फिर लीव करवा देती हूँ बिकॉज ऑलरेडी मेरा टॉपिक भी हो गया है. But how will she stop recording? This is the problem. Even I Check who is the host, ma'am. Here. यस मैम, मैंने चेक किया है कि यहाँ पे मैम yes I have joined again ma'am, sorry for inconvenience. हाँ जी, हाँ जी, यस Ma'am, may I stop recording? यस मैम, यस प्लीज. Who is this, ma'am?